Assalamualaikum. This is Fazul Wahab. You are watching my YouTube channel, and today we are discussing chapter class 6 English book, Cambridge Express English for Schools. You can see that title page. So this book is for grade 6, and we are discussing it. Today we will be doing exercise of the chapter, which is look at this one. Exercise of rainwater harvesting. So this is the lessons we have already done. This one we have already learned about this rainwater harvesting, and we will be doing exercise of this chapter. And this is the exercise of this chapter. Question number 1 is here, reading comprehension. Okay, question number 1 is, what do you understand by rainwater harvesting? Use the phrases given and complete the flow chart in the correct order. So these 3 sentences are being given here, A, B and C, and these are not in order. These are out of order, so you have to keep them in order. And for example, part A, storing rainwater in a dried bore well, a row of soak pits or a tank. This is one of the sentence, one of the things that happens during this process. And the second thing that happens during the rain harvesting is using rainwater later for household use and catching rainwater from rooftops, terrace and ground. अब हमने ये करना है कि ये जो 3 हमारे पास प्रोसेसेस है कि हम पानी को स्टोर करते हैं ड्राइड बोरवेल के अंदर, रो ऑफ सोक पिट्स और टैंक के अंदर। फिर दूसरा जो प्रोसेस होता है वो यूजिंग रेन वाटर लेटर फॉर हाउस होल्ड यूज़, घर के इस्तेमाल के लिए उस रेन वाटर को हम यूज़ करते हैं। और तीसरा जो है कैचिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स, टेरेस एंड अंडरग्राउंड। ये 3 चीज़ें हैं जो कि हो रही होती है ड्यूरिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें हमने इसको ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले ऑर्डर में कौन सा आएगा, मतलब इन तीनों में से पहले कौन सा आता है? कैन यू टेल मी अबाउट दिस वन? सी, कैचिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ। सबसे पहले क्या होगा कि हम पानी को, जब बारिश हो रही होती है तो रेन वाटर को हम रूफ टॉप से, टेरेस से, ग्राउंड से कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले काम ये होगा। फिर पार्ट ए, दूसरे नंबर पार्ट ए होता है कि वो जो कलेक्टेड वाटर है हम उसको ड्राइड बोरवेल के अंदर, सोक पिट्स या टैंक के अंदर स्टोर करते हैं सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में फिर उसी स्टोर्ड वाटर को हम फिर यूज़ कर लेते हैं। तो पहले में सी आ जाएगा, दूसरे में ए आ जाएगा और तीसरे में सी। जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से, पहले सी यानी पहले हम रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे टेरेस से, रूफ टॉप से, ग्राउंड से। फिर हम उसको सेकंड में हम उसको ड्राइड बोरवेल, रो ऑफ सॉक पिट्स हैं या टैंक है उसके अंदर स्टोर करते हैं। थर्ड में फिर हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उसको हमने put all these things in order. These things that are happened during the harvesting of rainwater, we have to put them in order. So question number 1 has been completed. Number 2, rainwater harvesting is a very new method. It's an old method or new method? It's an old method, so this one is wrong. Not a new method, it's an old method. Okay, so question number 2 is false. Question number 3, who will benefits from rainwater harvesting? This is the question. कौन उससे फ़ायदा लेते हैं? Our family and other people. Exactly, और फैमिली। रेन हार्वेस्टिंग के अंदर हम फैमिली भी इस्तेमाल कर लेते हैं और दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है? तो इसलिए और फैमिली एंड अदर पीपल्स कैन benefits from rainwater harvesting. You got this one? Question number 4 is, rainwater harvesting prevents 3 things. Building dams. Why building dams? Because building dams stop the flow of water. So if you are rain harvesting, if you are storing water or by means of rain harvesting, so you will not need to build the dams for this one. नंबर 1 चीज़। सेकंड चीज़ क्या होती है? सेकंड चीज़ बिल्डिंग कैनाल एंड बिल्कुल, या पाइप सिस्टम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा, एक्सपेंसिव, लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आपके पास रेन हार्वेस्टिंग के लिए पानी आपने बहुत सारा जमा किया हुआ है तो आप घरों के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए भी कर सकते हैं और उसी पानी से आप खेतों को पानी दे सकते हैं। तो आपके लिए कनाल और पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ठीक है, ये अलग चीज़ है, आजकल ज़रूरत ज़्यादा हो गई है तो रेन हार्वेस्टिंग वाटर से काम नहीं चलता, आजकल तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले ज़माने में चल सकता था, लोग बहुत कम होते थे, ज़मीन जो ज़ेर काश ज़मीन होती थी बहुत कम होती थी, लेकिन आजकल ज़्यादा हो गई है। तो बिल्डिंग के बगैर भी गुजारा नहीं है, और जो है बिल्डिंग, कनाल्स, पाइप्स, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। लेकिन ये पुरानी बातें हैं। चले, बहरहाल बुक वाला आतर कह रहा है कि भाई अगर हम रेनो हार्वेस्टिंग करेंगे तो बिल्डिंग, डैम्स को बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2 वो कह रहे हैं कि हमें जो है कनाल्स को, यानी जो इरिगेशन के लिए कनाल या पाइप्स जो लगाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3 क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा? Digging well. हाँ, डिगिंग वेल फॉर एक्सट्रैक्टिंग और फॉर सकिंग वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड। तो कुएं खींचने की, पानी, ज़मीन से पानी खींचने के लिए कुएं खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 चीज़, बिल्डिंग डैम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्डिंग कैनाल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड डिगिंग वेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो 3 चीज़ें जो कि रेन हार्वेस्टिंग से स्टॉप हो जाती है। नंबर 5, रेन वाटर सेव्स, रेन वाटर सेव्स व्हाट, रेन वाटर सेव्स वाटर For our future. फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है ना, जो है फ्यूचर के लिए आपने पहले पानी स्टोर किया तो उससे मुस्तकबिल में जो आपके घर के लिए ज़रूरत होती है उससे आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी ज़रूरतें उनमें से पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हेयर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6, why should everyone, this one, why should everyone in a neighborhood be involved in the moment? हर एक नेबरहुड में, आपके पड़ोस में हर एक बंदे को इन्वॉल्व क्यों होना चाहिए इस प्रोसेस में, इस मोमेंट में, कि पानी को हार्वेस्ट करें, पानी को स्टोर किया जा सके? इसलिए कि हर बंदे की ज़रूरत है। अगर सब के सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, यू कैन स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर। अगर गांव में एक बंदा पानी स्टोर कर रहा है और 100, 10, 15, 20, 40, 50 बंदे स्टोर नहीं कर रहे तो उनकी ज़रूरत, सबकी ज़रूरत उस पानी से, एक बंदे ने जो पानी स्टोर किया हुआ है उससे पूरी नहीं होगी। इसलिए हर बंदे को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए For water harvesting. हार्वेस्ट करना पड़ेगा। सो एवरीवन शुड बी इन्वॉल्व्ड इन रेन हार्वेस्टिंग इन दिस मोमेंट। ओके, Because water is our life. exactly. Question number 7, what should be done to ensure quality of the harvesting water? अगर आपने पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जो पानी आप स्टोर कर रहे हैं, and you want to improve the quality of that water, what should we do? Cover the pipe or the well from the piece of cloth. ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है फिल्टर, विच इज़ फिल्ट्रेशन, आप लगा सकते हैं। मतलब जो पानी आप कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द रूफ टॉप्स, फ्रॉम द टेरेसेस, फ्रॉम द ग्राउंड, जो पानी आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप फिल्टर करके जो स्टोरेज है उसके अंदर डाल दें। स्टोरेज का मतलब जो आपका टैंक है, या रो ऑफ सॉक पिट्स हैं, या जो ड्राइड बोरिंग वेल है जिसके अंदर आपने पानी को स्टोर करना है, तो उसको, उस पानी को उसी में जाने से पहले उसको फिल्टर करें ताकि साफ़ सुथरा हो जाए। इस तरह से पानी की क्वालिटी आपकी बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर वो गंदा पानी चला गया तो फिर साफ़ नहीं होगा। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो हो गई हमारे पास क्वेश्चन 7 तक जो है हमारे पास क्वेश्चंस हो गए। नाउ वोकैबुलरी इज देयर। द वर्ड से एंड स्पीक आर सिनोनिम्स, दे आर फेयरली न्यूट्रल वर्ड्स। Given below is a set of words that describe different ways of speaking है। ठीक है, words से और speak ये synonyms कहलाते हैं। synonyms क्या होती है बेटा? वो दो different English words जिसकी same meaning हो। Different words having same meanings are synonyms. You got this one? ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि हमारे पास से और स्पीक दो डिफरेंट वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स हैं। वो कहते हैं कि दे आर फेयरली न्यूट्रल वर्ड्स। गिवन बिलो इज, अब आपके पास ये सेट ऑफ वर्ड्स हैं, क्राइड, आस्क, वॉर्न, विस्पर्ड, एक्सक्लेम्ड, एक्सप्लेन्ड, और आपने इसके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एक आपके लिए कर दिया गया है, द गर्ल एक्सक्लेम्ड वाओ व्हाट अ लवली बैग, ये एक आपके लिए दिया गया। ठीक है। नंबर 2, द लिटिल गर्ल
whispered something in her mother's ear. छोटी बच्ची ने अपनी माँ के कान में सरगोशी की. whispered means सरगोशी करना, फुसफुस करना, ठीक है. माँ कान में कुछ चुपके से कुछ बोल देना, इसको whispered कहते हैं, ठीक है. So the little girl whispered something in her mother's ear. Number 3, the teacher dash the concept in detail. अब जब detail आएगा तो explain आ जाएगा, ठीक है. तो ऊपर लिखा हुआ है वर्ड क्या, explained आ जाएगा. The teacher explained the concept in detail. Okay. Question number part 4. She dash the guest if she had stay for dinner. She asked the guest if she had stay for dinner. उसने गेस्ट से कहा कि आप लोग डिनर के लिए रुक जाएं, ठीक है. तो ये asked आ जाएगा, ठीक है. Number 5, the boy dash his friends to keep away from the edge of the cliff. लड़के ने अपने दोस्तों के साथ क्या करा कि उसे कहा कि भाई आप लोग एज क्लिफ से दूर रहे, वार्न कर दिया उसको. The boy warned his friends to keep away from the edge of the cliff. ठीक है, क्लिफ के एज से, किनारे से दूर रहो. Number 6, ouch, the injured man cried out in pain. ये ouch की जो आवाज़ निकलती है ये पेन की वजह से होता है, तो cried चीखता है, ठीक है. तो the ouch, the injured man cried out of the पेन, ठीक है. तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए ये हमारे जो क्वेश्चन है ये हमने कर लिए. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी जो एक्सरसाइज के जो बाकी पार्ट्स हैं हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेते हैं. आज के लिए इतना ही.